Namaskar everyone, welcome to Astro Satvik. So today we have our very special guest with us, Shankarji. So as I told you last time, Shankarji will share some major insights with you on the coming weekend. So yeah, most welcome Shankarji and please आज आप जो भी knowledge लेके आए हैं, please share it with the viewers. Thank you, Satvik. The planet we're going to discuss is Rahu and the mysteries of Rahu. Rahu is basically Yama. Yama's secrets are all into Rahu. Rahu and Ketu, and we all know about the mythology of Rahu and Ketu. But one thing very important in this whole mythology was, which is a very big pointer, that they understood that Vishnu as Mohini was giving the nectar, but they did not make any kind of a hue cry or wanted to get up or do something, but went and sat where the devtas were sitting and drank it. That shows the intelligence, the cleverness, the tact, which Swarmin Bhanu had. I mean, that was the name of the Rakshas, and Rakshas were like, I mean, we couldn't call them Rakshas, we shouldn't call them devils. They were also people, but with a different way of life, perhaps. So Swarmin Bhanu was, so he went and sat, took the head was cut, one part became Rahu, one part became Ketu. And also understand the difference in Rahu and Ketu is, if you go into mythology, actually after the head was cut, Ketu without the head had a fight with Vishnu and his people for a long time, and they could not defeat him. Then Vishnu asked, "How can you be defeated? I mean, no, I cannot defeat you." Then Ketu said that I can only get defeated when Rahu turns his head away from me. I mean, he was like parallelly looking into Ketu. I mean, parallelly means on the top. I mean, he had his eyes on Ketu. So it was when it was removed, Rahu went away from there. Then they were able to actually, Rahu and Ketu became two parts, and they got an vardhan, I mean, a boon. Bhai, you are like devtas. Rahu and Ketu are always called devtas. They are not even called Guru. Brihaspati and Shukra are known as gurus. Rahu and Ketu were given the Shreni of Devtas. So that is the power of Rahu and Ketu. Rahu Ketu also are the 2 points of moon, which everybody knows. And moon, of course, is important because moon is what you've carried forward from your last birth. What is your prarabdha which you've carried? What is your sanchet karma you've carried? And that is there in moon, and it is through moon. The two nodes of moon are Rahu and Ketu. So they become very important karmic planets, just to give the introductions, where they become two very important karmic planets and tell you what is the inlet and the outlet of yours. So Rahu and Ketu, that in that way is very important. Rahu is like artificial intelligence. Rahu is something which you have a lot of sanchit karmas in it. When you come up, your soul, actually says, okay, I want to do these things in life. And Rahu, there are a lot of things getting picked up from the world in terms of various computings, etc. Rahu picks them up, and it is there to fulfill your desires, which you have left from your last karmas. It is a very important role in fulfilling all those desires. And those desires, since it is headless, has the head, it has all its senses, it fulfills by something in a complex AI environment in the cosmic system. That is how it picks up. And Ketu says, okay, I've had it all, I've seen it all. So that's the other part of it, Ketu, which is there. And also try to understand in a very basic form is Rahu is the head, it's got all its senses, but Ketu is the lower part of it. It doesn't have the senses, but it has the heart, so it has the intuition. The intuition is in Ketu, the other part is in Rahu. So that is how Rahu and Ketu have to be understood. None of them are. Hello. Sir, I'm listening, yeah. Okay. So none of them are like planets which have any contradiction. These two planets, and they're apart by about, I mean, they are Rahu Ketu are opposite to each other. Now coming back to, people would be more interested in the predictive aspects of Rahu and what does Rahu does. Rahu, everybody knows, is a planet which amplifies things, exemplifies things. It thinks out of the box. It does not follow the rules. It is technology. It is all about intelligence. Rahu has the energy of Rahu is in Rahu does very well in the fixed signs. That is Taurus, your
Kanya and Capricorn. We all of us know why it does do in fixed signs, because it does well, very well in fixed signs, because there a person, when he thinks, he does it, he executes it, he executes it very clearly. When Rahu, I'll just try to explain, Rahu is in the fiery signs, it behaves in a different manner, 159, where it, it has got a fire in it, it acts very fast. It acts very fast. It's not like Mars. Determined Mars and Rahu is a trickster. It will always act. When it has to act, it will act very suddenly. So when in fiery elements, it will be just quiet, but when it acts like like a bombardment is there, that kind of a thing which is there. And when Rahu is in the airy signs, it is more of a thinker. It does a lot of things which we do in contact, computer, communications, all the intelligence is going on. A lot of things is going on are in the airy signs. In the watery signs, if Rahu is well placed, it also, I've always told you, Rahu will give you both the things. It gives you one end of the extreme and the other end of the extreme also. So when Rahu is in 4, 8, 12, that is Cancer, Scorpion pieces, I have seen it also makes actually dharma, who understands dharma, who can propagate dharma, who can tell dharma in the right way, who have, like Shankaracharya, he went all over the country, but his main aim was also to unite India, unite the country, integrate the country. There was disillusionment. The Bhakti movement had started, and a lot of people who had started the Bhakti movement, if you look at the horoscope, you have Rahu in the watery sign. Because Rahu, watery signs, well placed, it becomes very well. Now, Rahu itself is, is important in terms of expanding things and doing things. But let me tell you some combinations of Rahu which are very important with So before various that, planets. I want to ask a question. Many viewers ask that if suppose there is a good Rahu in the horoscope and its Yeah. dispositor is also well placed, Yes. still is there a tendency to give its natural bad results in the dasha, like death in the family, accident, sudden mishappenings, which are the natural results of Rahu, which it generally gives? No, let's understand one thing. As I told you, when Rahu, let's say Rahu is in Libra. Okay. Let's say Rahu is in Libra and Rahu is in Libra and Ketu is in the seventh house, and you have Surya, which is a lot of 11th, gets exalted in the seventh house, and there are a lot of planets there, and Rahu is looking at all the planets. It will make a person a billionaire. It is well placed in Libra. It is looking at the seventh house, also looking at Surya, which is so. Let us understand two things of Rahu: the live aspect and the non-live aspect. Rahu is always good for non-live aspects of life. It is never good for the live aspects of life. Okay, so you mean to say that in the Rahu dasha, if it's a good Rahu, non-life aspects like fame, money Non will grow. will grow 100%. कहीं से भी And होगा तो grow life, करेगा. it can cause problem like health, एंड family लाइफ कैन matters. क्रिएट प्रॉब्लम. जैसे अगर राहु है, यहाँ पर 11वें घर का मालिक हो गया सूर्य, ठीक है ना, सूर्य मालिक हो गया, सूर्य 7वें घर में आके बैठ गया, तो आदमी बिजनेस 11th हाउस से, और मान लीजिए ये बहुत बड़े अरबपति की हॉरोस्कोप है, 7th हाउस में मान लीजिए मरकुरी भी बैठा है, केतु भी बैठा है, मंगल भी बैठा है, और सूर्य 11वें घर का हो गया. सो 11वां घर तो आपको अच्छा देगा, ठीक है, और राहु देख रहा है, तो ये क्या करेगा कि इसको सब चीज अच्छा कर देगा. एवरीथिंग विल बी गुड फॉर मनी. जहां छुएगा पैसा मिलेगा, गेन मिलेगा. बट राहु सूर्य को देखेगा, फादर के लिए प्रॉब्लम कर देगा, थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम कर देगा, नॉट मनी अगेन. राहु मरकुरी को देखेगा तो बहन बेटी बुआ का प्रॉब्लम कर देगा. Okay. राहु दैट काइंड ऑफ थिंग इट विल डू. So that यू basic अंडरस्टैंड? nature वो रहेगा, मतलब living वो signification को बेसिक थोड़ा रहेगा. harm. whenever you're analyzing Rahu, be very clear कि it is only good. I would put it very clearly. It is only good for the जो जीवित चीजें नहीं, अजीब चीजों के लिए. जीव चीजों के लिए राहु कभी अच्छा नहीं. This is the most important कुछ भी. सूत्र, I guess. People यहाँ पे Yes. confusion create करके गलत prediction कर देते हैं. हाँ. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ राहु. तो राहु सूर्य के साथ होगा. मान लीजिए लिब्रा में है राहु, नीच के सूर्य के साथ है राहु है, और लिब्रा में है, मतलब नीच के में सूर्य. तो ये आदमी को ऐसा नहीं, आदमी को बहुत बड़ा आदमी बनाएगा. इसको लोग देखेंगे कोई लिब्रा इज अ नेचुरल साइन, जो लोग मासेस को रिप्रेजेंट करता है, जो लोग आपके सामने बैठे हैं उनको रिप्रेजेंट करता है. सूर्य है वो भी, इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सोल एक्सेट्रा. इट गिव्स यू पावर, इट मेक्स यू बिहेव लाइक अ किंग. तो एक ऐसा आदमी होगा, ये आप जैसे आदमी कोई होगा, जैसे कि he will be sitting on the computer, or he could be on the film world, he could be anything great, but a lot of people will be watching him. मगर राहु क्योंकि सूर्य को देख रहा है, तो इसके फादर का प्रॉब्लम करेगा, और सूर्य नीच का है तो उसको इनसिक्योरिटी होती है. जब भी सूर्य नीच का होगा, जैसे कि एक एग्जांपल आई एम गिविंग ऑफ सूर्य हार्ट या आल्सो. इम्यूनिटी प्रॉब्लम भी हो सकता है, हार्ट या इम्यूनिटी का प्रॉब्लम.
हार्ट इम्यूनिटी इश्यूज होंगी, लाइव होगा, अगर लग्न है तो ज्यादा हो जाएगा, लग्न नहीं है तो नहीं होगा। बट फादर का प्रॉब्लम देगा और अंदर से इनसिक्योरिटी देगा। आदमी आदमी लगेगा आपको बहुत बड़ा आदमी है। यू सी द हॉरोस्कोप ऑफ शाहरुख खान, यू सी वेरियस अदर हॉरोस्कोप, सूर्य नीच का है, बड़े बड़े लोग हैं। तो लोग देख रहे हैं, बड़े आदमी हैं, देख आदमी है, राहु देख रहा है, पब्लिक देख रही है, टेक्नोलॉजी के थ्रू देख रही है, क्योंकि पिक्चर भी टेक्नोलॉजी है। मगर अंदर से कितना भी अरबपति आदमी, इनसिक्योरिटी हो सकता है ना मैं उसके। इनसिक्योरिटी समथिंग विच इज इंटरनली डिफाइंड। फादर का प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू सी राहु, एंड सो लेट्स, दैट इज हाउ राहु हैज टू बी सी। Some सो राहु combinations related to Rahu, any combinations you feel, मतलब अगर आप let's mention. take one by one planet. सबसे talked about combination शुक्र राहु. Now Venus आज का मालिक है, राजा है. Venus is governs everything. Second natural zodiac में second house है, तो finance पे govern करता है. Seventh house है, business partnership है, technology है, medicines है, आपका फिल्म वर्ल्ड है, रिलेशनशिप, लव, सेक्स, ये सब चीज शुक्र से, वीनस से गवर्न है. तो जब शुक्र राहु के साथ होगा तो आपको पैसा जरूर देगा. आदमी के अंदर प्रवृत्ति होगी पैसा कमाने की. अब वो कैसे कमाएगा डिपेंड्स ऑन वेयर शुक्र राहु इज प्लेस्ड. अगर शुक्र राहु अपने फ्रेंड के यहाँ प्लेस्ड है, शुक्र राहु दोनों के दोस्त, करीब करीब मरकुरी, सैटर्न और वीनस अपने घर में, ये इनके दोस्त हैं, इनके दोस्तों के घर में प्लेस्ड है, इट विल डू वेल, इट विल गिव यू ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेल्थ. मगर राहु शुक्र जब साथ में होगा तो आदमी को ये जरूर रहेगा कि उसको पैसा कमाना है, किसी भी तरह से कमाना है. राहु शुक्र आठवें घर में होगा तो आठवें घर की चीजें करके करेगा प्लैनेट. अगर लाइक एग्जाम्पल लेट अस टेक द एट्थ हाउस. एट्थ हाउस है तो आठवां घर बहुत सारी चीजों का कारण है. अंडर द अर्थ का कारक है, मिनरल्स का कारक है, माइनिंग का कारक है. आजकल के जो जॉइंट फाइनेंसिंग होती है, जो हम लोग करते हैं वर्ल्ड में, जो बिग फाइनेंशियर्स who are actually financing the big industrialist of the world, the financial investors जो पैसा सबसे से जोड़ते हैं, वो करते हैं. वो सब that is all governed by eighth house, money which has to be accumulated because it is the seventh of second. वो सब राहु जो है वो आपको इतना बड़ा आदमी बना देगा इन सब चीजों में. मगर राहु शुक्र जब एट्थ हाउस में होगा तो his sexual orientation may not be good. He will be he could be going with doing things which are not right. He may be doing things which are inappropriate if it is in a negative sign. So Rahu Shukra जब पॉजिटिव साइन में होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा. मगर उसकी जो लाइव एस्पेक्ट है शुक्र जो है वो इट इज वुमन, इट इज सेक्स, इट इज मैरिज. तो ही विल नॉट बी वन पर्सन वुमन. शुक्र राहु जहां भी आप प्लेस होंगे वो आदमी एक एक पर्टिकुलर औरत के साथ सेटिस्फाई नहीं होगा. ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड. ही विल नॉट बी श्री राम. ही विल नॉट बी अ वन मैन वुमन. रिमेंबर दैट. बी वेरी क्लियरली, be clear that शुक्र राहु साथ में होगा. if it is placed in 8th house, I explained you, the sexual orientation of that person will be different. He would like to enjoy himself in a very different way, so वेल दे देगा 8th हाउस की तरफ से, वेल दे देगा. अगर ये शुक्र राहु मान लीजिए नेगेटिव हाउस में प्लेस्ड है, अपने दुश्मन के घर में प्लेस्ड है शुक्र राहु, आपको I know someone, आपको उनका शुक्र राहु लगन में है, person is very famous, big fame, like huge yes, fame. yes, of course. शुक्र राहु लग्न can give you a lot of fame. Shukra Rahu Lagna can give you a lot of fame, but it will also give you a tendency where शुक्र का 5th 7th 9th एस्पेक्ट भी देखो, बहुत जरूरी. मैं तो देखता हूं, है ना. सो व्हेन यू लुक, दिस इज अ प्रिंसिपल व्हिच आई वुड लाइक टेल यू हियर आल्सो, कि आदमी क्या करता है, पांचवा सातवां नवा घर देखता है, अगर खाली है तो उसको नहीं कंसिडर करता. दैट इज नॉट द वे टू बी डन. पांचवा सातवां नवा घर जिस लॉर्डशिप को एस्पेक्ट कर रहा है उसकी एनर्जी भी राहु के अंदर आ जाएगी. सपोज राहु इज इन कर्क में है तो इट विल लुक एट मंगल के घर के नेगेटिव 8th हाउस स्कॉर्पियो का. तो स्कॉर्पियन एनर्जी विल कम इनटू दैट राहु इवन इफ इट इज नॉट एक्सपेक्टिंग, इवन इफ देयर इज नो प्लैनेट देयर. So this is one thing which you have to see Rahu. If you have to understand कि राहु एक चीज खाली नहीं देता है. लोग कहते हैं राहु खाली, it will give you a lot of negative and positive thing depending upon the aspects 5th 7th 9th, but it will always be good for live things. जो जीवित चीज होती, अजीवित चीज होगी, जीव चीज के लिए अच्छा नहीं होगा. नॉन राहु लिविंग चौथे, हाँ, राहु चौथे घर में अकेला बैठा हुआ, ठीक है, बहुत आपको वो दे देगा, जमीन जायदाद. मान लीजिए लिब्रा के घर में बैठा, अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है, एक्वेरियस में बैठा, तो सब कुछ दे देगा.
पैसे का, धन दे देगा, कमाने की शक्ति दे देगा। ऑफ कोर्स यू हैव टू सी अदर थिंग्स सात्विक, लाइक लग्न एंड वो सब चीजें भी देखना चाहिए। दिस इज नॉट कैनॉट बी टेकन एज दिस। बट अगर वहां पर इसकी चाहत देगा, कितना देगा डिपेंड्स ऑन अदर थिंग्स, बट देगा जरूर। मगर मदर कोई लाइफ टफ कर देगा, बिकॉज चौथा घर माँ का होगा, माँ का लाइफ टफ कर देगा। द ओनली प्लैनेट विच कंट्रोल्स राहु आई फील इज मार्स। मंगल जो है वो राहु को कंट्रोल करता है। अगर लोग कहते हैं मंगल राहु को लोग खराब मानते हैं, मगर अगर मंगल जो है वो राहु के पीछे है, इन डिग्रीज, इन डिग्रीज, राइट। मंगल इन डिग्रीज इज बिहाइंड राहु। राहु। मंगल विल कंट्रोल राहु बिकॉज मंगल इज अ प्लैनेट विच इज इन अ कॉन्स्टेंट वॉरफेयर सिचुएशन। एक मंगल, राहु एक हाथी के समान है, और मंगल जो होता है वो महावत बन जाता है उसका। और एक हाथी को जब एक अच्छा महावत बन जाता है, मिल जाता है, देन सच पीपल विल राइज। नाउ दिस मंगल राहु विल गिव यू अदर टेंडेंसीज which we have talked, which will be relating to, you will not be able to, if it is in a woman's horoscope, उसको नहीं करने में मुश्किल हो in terms of enjoying life, because Rahu says हमको each and every nerve should enjoy. I have come here, मैं अपने आप को एंजॉय करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं ऐसी चीज करने के लिए पैदा हुआ हूं जो कि मैं हर चीज को देखूं और खोजूं। दिस इज व्हाट राहु इज। राहु इज लाइक व्हाट द डिफरेंस बिटवीन राम एंड रावण, right? Ramchandji had all vidya, Ravan had all vidyas. He was a great bhakt of Shankar. Everything was there. But what was his philosophy? मैं इस जीवन को एंजॉय करना चाहता हूं, मैं सोने की लंका बनाना चाहता हूं, मैं अपने एक एक चीज को आई वांट टू फुल्ली एंजॉय माई सेल्फ। तो ही वॉज अ बिग पंडित। सो दिस इज व्हाट राहु गिव्स। राहु डजंट कि आपको छिछोरा बना देगा, कि आपको नॉलेज नहीं देगा। राहु स्ट्रांग होगा, आदमी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डॉक्टरेट, इन सब चीजों में भी बहुत अच्छा करेगा। बट इट गिव्स यू दिस टेंडेंसी विच यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट राहु। ये राहु मार्स का योग इन फीमेल्स कैन कॉज चीटिंग इशू आल्सो, दीज कैन बी लाइक राहु अनफेथफुल। मार्स इन फीमेल इशू। मार्स क्या होता है? मार्स होता है स्ट्रेंथ। नहीं, नहीं, नो मीन्स नो, राइट। जब मंगल राहु के साथ होगा, राहु मंगल को बोलेगा यार नहीं क्यों बोलते हो भैया, लेट अस एंजॉय इट ना। तू एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूं, यू आर दैट एनर्जी विच इज कॉन्स्टेंट देयर, विच इज कॉन्स्टेंटली देयर। मार्स है वॉरफेयर का प्लैनेट, लड़ता ही रहता है, रोज एक स्टेप चलता है। राहु जो है वो 2 स्टेप चलेगा, फिर ऐसी छलांग लगाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि दैट छलांग 10 स्टेप के आगे कर दिया, राइट। when Mangal and Rahu together, the power to say no, because we are in a podcast, becomes very, very less. अगर मंगल राहु साथ में है और उसको शनि भी एस्पेक्ट कर लेता है, मान लीजिए मंगल राहु आपका दूसरे घर में है, और आपका समझ लीजिए मिथुन राशि, मिथुन राशि है, मंगल राहु, मंगल नीच का है, राहु सेकंड है, और शनि 8वें घर से उसको एस्पेक्ट कर रहा है। सो सच अ लेडी कैन हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, राइट, but the power to say no, and Shani aspecting, I will not have, Okay. let the viewers conclude and write on the comment box, right? एंड राहु सूर्य यू टेक फॉर फेम एंड पावर, राइट, जैसे आपने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन राहु करा। राहु एम्पलीफाइज सूर्य। सूर्य क्या कहता है? मेरे को अंदर बाहर पावर चाहिए, मेरे को बाहर पावर दिखाना है। सो इट इज, सपोज सूर्य नीच का है और राहु साथ में है, तो सच पीपल आर बिकमिंग पॉलिटिशियंस, सच पीपल आर बिकमिंग वेरी फेमस। 4 पुलिस वाले चल रहे हैं साथ में, और कभी 8वें घर में प्लेस्ड है, तो वो ऐसा साधु या ऐसा वो बन रहा है कि जो शिक्षा दे रहा है, भिक्षा दे रहा है, पर 8वें घर के काम भी कर रहा है। तो राहु सूर्य आदमी को आउटर फेम देता है, बट इट विल ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम फॉर हिज फादर। अंदर से इट विल क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट इन हिज ओन माइंड, इट विल रिड्यूस हिज वाइटालिटी। ही विल बी अ मैन जो कि काम करने के बाद उसको कहीं से कचोट लगेगा, ही विल फील ह्यूमिलेटेड विद इन हिमसेल्फ। तो जो अंदर की जो प्रक्रिया है सूर्य की, वो खराब होगी, मगर जो बाहर आदमी देखेगा उसको बहुत अच्छा लगेगा। आई नो समवन इज अ बिजनेसमैन, राहु सूर्य युति वॉक्स इन अ कॉन्वॉय, मतलब वो वीवीआईपी यस। ट्रीटमेंट उनको बिना बात का मिल रहा है। ही इज नॉट इनटू गवर्नमेंट बट स्टिल, लाइक आई वाज शॉक्ड अरे दिस गोइंग ऑन, राहु आजकल तो सूर्य। आई बीन डूइंग सम, आई सी सो मेनी गुरुज एंड सो मेनी पीपल, जिंदगी जीना व्यर्थ है, मटेरियलिज्म व्यर्थ है, ये बोल रहे हैं, मगर जब आ रहे हैं तो एक बड़ी भारी गाड़ी में आ रहे हैं, सामने फ्लैग है, 5 पुलिस के साथ आ रहे हैं, बीच में पुलिस चल रही है, भी उसके बीच में चल रहे हैं।
क्यों चल रहे हैं? कि ये यात्रा कर रहे हैं और 90 लाख लोगों की यात्रा कर रहे हैं, करोड़ लोगों की यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर कुछ वो हो सकता है, उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। लॉजिक टू एवरीथिंग, दिस इज राहुल लॉजिक। Shankarji, सो now two very important combination which people are always asking in the comments. One is Guru Chandal, another is Grahan Dosh, Rahu Moon. So what do you देखो यार, think? Yeah. Guru Rahu, definitely my experiences, it is not good, right? For your family life. For your family life, Guru Rahu is not good. क्योंकि गुरु किस चीज का कारक है? सेकेंड हाउस का कारक है, फिफ्थ का कारक है, नाइन्थ का कारक है, ट्वेल्थ का कारक। तो गुरु राहु में अगेन डिग्रीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ देखो, मगर गुरु राहु जहां भी होगा, जैसा भी होगा। अब गुरु चंडाल बना दिया उसको, राहु को लोग चंडाल बोलते हैं, बट राहु तो इज द प्लैनेट ऑफ टुडे। आज का जो प्लैनेट है जिसको सबसे ज्यादा पूछते हैं वो है राहु, क्योंकि पैसा तो राहु देता है ना, और भगवान के बाद नेक्स्ट चीज इज मनी टुडे। तो गुरु राहु may give you issues with family, will give you issues with children, late marriages, low morality। बट गुरु राहु अगर प्लेस्ड है तो आदमी को बहुत बड़ा गुरु भी बना सकता है, राहु टाइप का। ठीक है, गुरु राहु साथ में है तो आदमी को विदेश की यात्रा में, विदेश से बिजनेस, डिफरेंट टाइप की चीजों से कराकर विदेश से धन कमा सकता है। यू गेट द पॉइंट? Okay. सो गुरु राहु, बट डेफिनेटली इट विल नॉट बी गुड फॉर, क्योंकि राहु डज नॉट वांट फैमिली, इट इज नॉट सेटिस्फाइड विद वन थिंग। जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए था, वो चीज नहीं। इट इज समथिंग सेम। आई गो द एनालॉजी ऑफ श्री राम एंड श्री कृष्ण। राम मेड अ लॉट ऑफ रूल्स, कृष्ण सेड लेट मी ब्रेक ऑल द रूल्स। ये रूल्स बहुत पुराने हो गए, राइट? ही ब्रोक ऑल रूल्स, डिडंट ही? And एंड राम, Rahu, and yeah. Sri Ram was a मर्यादा पुरुषोत्तम पर्सन। हाँ बोलिए। Rahu Moon Yog, many people call it as a cancellation of Raj Yog also in the Kundli. Gemini Sutra says Rahu Moon together can cause cancellation of the Raj Yog. So what is this? Matlab, I've seen also a lot of people with Rahu Moon suffering a lot in the life. So is it really a bad yoga or there is some curse associated with it? Rahu Chandra, when it comes together, Chandrama I feel, is it carries the DNA. It lot of people say Shukra carry, जो भी कहता है, but according to Chandrama is your mind. And if you, अगर आप महाभारत को देखोगे ना, तो उसको अगर हम छोटे में बताएं, तो जो अंधा आदमी है, जो कि धृतराष्ट्र, that is your mind. And you have 100 Kauravas and you have 5 Pandavas. That is how, if you look at it. Karan is your, Karan, he is your ego. And Draupadi is the life, the purpose of your life. So Rahu is very important that way. Chandrama जो है, वो एक ऐसा mind है, it is blinded, it is blindfold. It is affected by 100 Kauravas, 100 negative things and 5 positive things. Right? Now, whenever Chandrama is with Rahu, you have to see the degrees of Chandrama and Rahu. कि राहु चंद्रमा को खा रहा है कि चंद्रमा राहु को खा रहा है। अगर आपके इवन इन साइंस एंड अदर थिंग्स, अगर आपका जो राहु है वो चंद्रमा के पीछे है, समझ रहे हो ना, डिग्रीज में या साइंस में, ठीक है, इट विल नॉट डू दैट मच ऑफ हार्म, आपके माइंड को भ्रमित नहीं करेगा। मगर जब चंद्रमा राहु के आगे आ जाता है in degrees or in science, then it creates a lot of problem. Rahu travels back, वो चंद्रमा को खा लेता, मतलब वो राहु ultimate एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करेगा चंद्रमा को, इट विल कंट्रोल मून नाउ। करेगा, उसको खाने की कोशिश करता है चंद्रमा। तो इट इज, उसको समझ में नहीं आता चंद्रमा को कैसे एक्ट करूं मैं, हाउ टू एक्ट। बट व्हेन इट इज एट बैक, इट विल मेक यू अ काइंड ऑफ पर्सन who could be dealing with the people, who could be dealing with the liquids, it could be dealing with chemicals, it could be dealing with transport, it could be dealing with masses, you could be very good with masses also. तो ये आप इसको, इस बात को डोंट फॉरगेट दैट, यू हैव टू सी राहु चंद्रमा किस हिसाब से। राहु चंद्रमा को खा रहा है कि उसको बल दे रहा है। अगर राहु चंद्रमा को खा रहा है, चंद्रमा भ्रमित। अगर चंद्रमा के पीछे है राहु, तो राहु तो चंद्रमा इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, राहु तो रेट्रोग्रेड मोशन है, पीछे की तरफ जा रहा है ना, और चंद्रमा आगे बढ़ रहा है। Okay. Right? That And is one in a, combination
which maximum people are scared. Some call it pitra dosh, some call it sarpa dosh. That is Saturn Rahu. नहीं नहीं, So देखो भाई, सैटर्न राहु टुडे, आजकल के जितने बिजनेसमैन हु आर डीलिंग विद प्रॉपर्टी आर हैविंग सैटर्न राहु टुगेदर. शनि इज ऑल अबाउट लैंड. मेरे हिसाब से आई कैटेगराइज शनि एज लैंड एंड मंगल एज अपार्टमेंट्स इन द प्रेजेंट वर्ल्ड इन द कॉन्टेस्ट. शनि इज ऑल अबाउट लैंड एंड राहु इज अबाउट बिग लैंड. शनि राहु वेल प्लेस्ड मेक्स यू अ बिग प्रॉपर्टी डीलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. शनि राहु से डरने की बिल्कुल कोई जरूरत है ही नहीं. यू डोंट हैव टू. यस, in the it Kali is a Yuga, in the present combination. Yuga. It is a combination. It is a combination. If it is affected and not at right places, it can give you cancer-like diseases. ये याद रखिए. तो प्रोफेशन की तरफ जब आप शनि को देख रहे हैं, शनि इज ऑल्सो लाइक, यू नो, इट्स ऑल्सो गुड फॉर द नॉन लाइफ थिंग्स, जो कि जीवित नहीं है, जैसे ये प्रोफेशन. और प्रोफेशन से अगेन यही दो चीजें देखता है ना साइंस, तो नॉन. एंड राहु इज ऑल्सो गुड फॉर द नॉन लाइफ. बट शनि राहु, शनि इज ऑल्सो द मेन थिंग फॉर योर लॉन्जिविटी. एंड देयर शनि राहु, यू हैव टू सी वेयर इट इज हाउस. शनि राहु इन 8th हाउस, मैंने बहुत लोगों को देखा है, अगर वो वेल प्लेस नहीं है, इट विल गिव यू कैंसर. और कैंसर लाइक, कैंसर ओनली मीन्स कि आपके सेल्स बहुत जल्दी ग्रो करने लगते हैं. अगर बच्चे के 3 साल में ग्रो करते हैं तो बहुत बढ़िया, बड़ा हो रहा है. हमारे आप में ग्रो करने लगते हैं तो कैंसर हो गया. दैट इज व्हाट इज कैंसर. सिस्ट हो गया, ट्यूमर्स हो गए, दिस ऑल विल कम. आजकल का जो एक फ्रेज है ऑटो इम्यून डिजीज, 100% शनि राहु साथ देगा ना. ऑटो Shani इम्यून Rahu. डिजीज, Okay. Okay. हाँ For शनि राहु, ऑटो autoimmune इम्यून disease, डिजीज. you take Shani ऑटो Rahu. इम्यून आयरन है आपका, आयरन इज नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड. यू आर टेकिंग आयरन, राइट. इट इज नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन योर बॉडी और निकल रहा है, तो लोग फिर आयरन चढ़वाते हैं, आयरन की टैबलेट्स खा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. डिपेंडिंग हाउ योर 6th हाउस इज, अदर थिंग्स आर, यू मे गेट सेव्ड, यू हैव लॉन्जिविटी. बट शनि राहु विल गिव यू काइंड ऑफ एन ऑटो इम्यून डिजीज, कि आपके जो आयरन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा in your body. So this is what is the problem of Shani Rahu, but not as far as money is concerned, profession is concerned, and wealth is concerned. Okay. And any snapshot sutra, sir, because you have expertise in the dasha. So any snapshot you remember कि दशा में राहु की ये दशा हो, राहु में केतु हो, राहु में सैटर्न हो, या ऐसी कोई भी दशा देखो, combination? Yeah. Guru Rahu is never good. जुपिटर में राहु का अंतर इज नेवर गुड. शुक्र राहु युति अच्छी होती है, मगर जब भी शुक्र में राहु का अंतर आएगा, उस टाइम आदमी की शादी या औरत की शादी नहीं होगी. दो पीपल से वो कारक ऑफ म्यूजिक शादी नहीं कराएगा. अफेयर दे शुक्र सकता है, राहु रिलेशनशिप, अफेयर फिजिकल. रिलेशनशिप सब देगा, बट उसमें नेगेटिविटी देगा, आपको दुख देगा, अच्छा नहीं देगा. सेकेंड हाउस इज ऑल्सो योर, यू नो, आंखें, योर फेस, आंसू देगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. शुक्र इज ऑल अबाउट योर, यू नो. तो शुक्र जब, इट विल नेवर गिव यू दिस थिंग. एक और बड़ा प्लैनेट है, अगर इन सब का सबसे बड़ा चीट प्लैनेट जो है वो है चंद्रमा. ओके. अगर शुक्र राहु के साथ या राहु के साथ चंद्रमा आता है, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर राहु चंद्रमा है, उसका शुक्र भी आ गया है, तो ऐसे आदमी को बिलीव मत करिए, ही विल बी अ चीटर. चीट करना, चीटिंग का जो हैबिट होती है, वो वो होती है चंद्रमा. मींस दिस इज हैबिचुअल, ये आदमी के डीएनए में हैबिचुअली होगा, द पर्सन इज ये अनटचेबल. हैबिचुअली होगा, हर जगह चीट करेगा, बिना बात के झूठ बोल देगा अगर बहुत खराब हो. ठीक है ना, बिना I know बात के. some और females with this combination. They like some of them are having extramarital affairs. Few of them are cheating their यस husband. So भाई, देखो गुरु ये होता है, गुरु ये करेगा, वो छुपा के रख देगा उस चीज को, उजागर नहीं होगा. पब्लिक गुरु इज व्हाट, आपको पब्लिक में चीज नहीं. तो अगर गुरु देख लेता, बहुत लोग कर रहे हैं रिलेशनशिप 2 टाइम 3 टाइम नहीं होता है, गुरु देख रहा है. तो शुक्र चंद्रमा, चंद्रमा और राहु साथ में है, सब साथ, मान लीजिए 5वें 9वें शुक्र भी है, और गुरु भी कहीं से देख रहा है, कोई एस्पेक्ट है, या उसके अंदर उसके क्या कहते हैं, नक्षत्र लॉर्ड वगैरह गुरु है, शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड मान लीजिए गुरु बन गया है. ठीक है, तो और ये भी कॉम्बिनेशन है, तो आज पकड़ा नहीं जाएगा. वो लड़की होगी, वो लड़का होगा, मैरिटल अफेयर करेगा, he will not be caught. He may be 2 timing, 3 timing, he may gain for it. Because शुक्र में भी, शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर बन गया, तो बढ़िया, बनता ही नहीं. Rahu Shani तो Dasha. Any observation? Shani Rahu, Rahu Shani. राहु शनि will be very bad for health. Will be very bad for health. You should be careful about health. मगर एक बात याद रखिए, जब भी राहु का अंतर आएगा, एक्सेप्टिंग गुरु राहु, जब भी किसी और प्लैनेट में राहु का आएगा, तो राहु कहता है बॉस बताओ करना क्या है.
इट इज अ प्लानट विच, यार तुम बताओ मेरे को व्हाट इज माय ड्यूटी टू डू। सपोज मरकरी राहु आ गया, अब मरकरी इज अ बिजनेसमैन, मान लीजिए एरीज लग्न ले लेते हैं, या चंद्रमा, चंद्र मैं तो लग्न लेता है, चंद्र लग्न भी देखता हूँ, गुरु भी देखता हूँ, सूर्य भी, मान चंद्र लग्न ले लेते हैं एरीज, उसमें थर्ड और सिक्स का लॉर्ड है, और आपका चंद्र मरकरी राहु आएगा, तो मरकरी राहु पूछेगा, राहु पूछता मरकरी से करना क्या, थिंग्स विल बिकम वेरी फास्ट। अगर उसके जॉब में कोई प्रॉब्लम है, ही इज अ स्पोर्ट्समैन, ही विल डू वेरी वेल इन स्पोर्ट्स, करेज दे देगा, कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन बढ़िया दे देगा। सिक्स हाउस, आजकल सिक्स हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, बिकॉज अगर डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो सिक्स हाउस के बिना बन ही नहीं सकते आप। सिक्स हाउस तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो गया, छठा आठवां बारहवां तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ये चारों हाउस बड़े, तीनों हाउस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी राहु किसी के साथ आएगा, वो बोलेगा उससे, उसके अंतर में जब आएगा किसी भी दशा में, उसके अंतर आएगा, बोलेगा क्या करना है, इट विल गिव यू रिजल्ट्स, इट Any विल गिव यू द remedy of पॉजिटिव। Rahu, like when you prescribe Gomed, any particular position which you prefer? राहु के लिए गोमेद ठीक है, गोमेद लाइक कलर्स ठीक है। राहु की जो इष्ट है काली है, आई मीन यू शुड वर्शिप काली। बट आप ये सोचो, आपको राहु की जो बेसिक जो क्वालिटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी, वो कभी नहीं खत्म हो सकती। Okay, वो आप हमेशा रहेगा. आज की तारीख में कोई आदमी राहु से जुपिटर बनना चाहेगा? तुम बताओ मेरे को साथवे, No one. राहु से कोई आदमी जुपिटर बनना चाहे, किसी को कहेंगे ये 10 करोड़ रुपए हैं और ये विष्णु जी की मूर्ति है, यहाँ आपको पूजा करना है, कौन चूज करेगा उसको? Right, right. वो कहता है, यार दोनों दे दो मेरे को, वो दोनों चीज दे दो, एक तरफ विष्णु जी की पूजा दे दो, ये दे दो, तो ये बनता है गुरु राहु का कॉम्बिनेशन। दिस इज व्हाट हैपेंस, सो दिस इज ऑल यू हैव टू सी। तो No, राहु, this was a, yeah, very, राहु very good insights. राहु टुडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर वेल्थ। और राहु की पूजा कोई मंदिर आजकल, जैसे कि वो कौन सा खाटू श्याम जी है, उनको, उनकी पूजा आजकल लोग, करोड़ों लोग कर रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं वहां पर, है ना? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भाई वहां पर पूरी उन्होंने कथा बनाई है कि बर्बरी का खाली सर था, और ही इज लाइक राहु केतु, उनका खाली सर से वो देख रहे हैं, तो ही इज सिंबॉलिक ऑफ राहु। यू सी द रश टुडे, सो चलिए, पीपल so आर ऑल, it was a great session, I guess viewers के लिए, क्योंकि it will be a very too much of या information to process for today. But I have यस one यस request for you, sir. Many people requested that they saw your Lal Kitab, so they want some techniques from the Lal Kitab. So if we can have a session on हाँ, Lal we will, Kitab we can have sometime. a certain, लाल किताब इज वेरी गुड यूज्ड विद वैदिक, जो तुम भी करते हो, हर चीज को मिला जुला के तुम, आई हैव सीन योर वीडियोस, सो यस वी शुड यूज लाल किताब इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट सटीक चीजें बताता है। And sir, any update on your course? Any course you are launching for viewers? नहीं नहीं, मैं तो कोर्स लेना तो यार, इस लिस्ट में, यू नो मी फॉर लॉन्ग टाइम, सो But नो please कोर्स। share the link of your book, Rahu book का जो आपका link है. यस, राहु मिस्ट्रीज है, मैंने भी कहा भाई, यमा सीक्रेट्स बाय प्रभात पब्लिकेशन। इट इज अ वेरी डीप थिंग ऑन राहु, दैट हाउ राहु अफेक्ट्स द दशास, दिशास, एंड हाउ राहु अफेक्ट्स इन ईच डिग्री, हर डिग्री में राहु क्या कर रहा सकता है, और कौन कौन सी चीजों को अट्रैक्ट करता है राहु। इट्स अ डिटेल्ड बुक विच कैन ओनली बी डन हु नो रिसर्च। आज आपको यू I'll विल सी I'll I'll इट। publish the link in the comment and description box of the यस यस, your book and your channel. So एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, I थैंक hope यू। we have another session very soon. Okay. हाँ, जरूर करेंगे हम। ओके Oh, सात्विक, okay, थैंक्स, Shankar ji. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। Okay, thank you.